السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. پاکستان میں ایک اہم موضوع سیاست کا امریکہ رہا ہے. پاکستان امریکہ تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف موضوع رہتے ہیں ادھر، مگر ان کے حوالے سے کنسپریسی اور قیاس آرائیاں جو ہیں وہ زبان زد عام رہتی ہیں. حال ہی میں جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو سب سے بڑا بیانیہ جو ہے اس ملک میں وہ سازش کا رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے. وہ کنسپریسی کہ جو بنی گئی اور ایگزیکیوٹ ہوئی امریکہ سے، اور کس طرح پاکستان میں ہمارے لیڈرز کو اور ہماری سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا گیا. نیچرلی ایک ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک منفی تاثر جو ہے اس کی وجہ سے پایا جاتا ہے. مگر کچھ فیکٹس ہیں آن گراؤنڈ، وہ فیکٹس ہمیں سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے ایک اپنی انڈیپینڈنس سے لے کے آج تک ہمارے جو امریکہ سے تعلقات رہے ہیں وہ بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے ہیں. بلکہ اگر ہم کہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں ایک ڈپلومیٹک فریز تھا تو یہ غلط نہ ہوگا. وہ اب آہستہ آہستہ آ کے تھو ہونا شروع ہوئی ہے یہ ریلیشن شپ. 4 سال بعد امریکہ نے ایک ادھر اپنا سفیر تعینات کیا ہے. فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اینٹنی بلنکن سے چند مرتبہ بات بھی کر چکے ہیں، اور اب بات ہو رہی ہے کہ آگے کس طرح بڑھا جائے، کیونکہ خطے کی صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور بالخصوص پوسٹ افغانستان پاکستان تو بہرحال ہمیشہ خواہ رہا ہے کہ ہمیں ایف پیک نہیں اور سیکیورٹی لینز نہیں، نیوکلیئر اسٹیٹ کی لینز سے نہیں، بلکہ اکنامک اور ڈپلومیسی کی لینز سے دیکھا جائے. اور کیونکہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھارت بھی ہے، پاکستان کو کیا کرنا ہوگا کہ واشنگٹن میں پاکستان کو بھی اسٹریٹجکلی اور اکنامکلی ایک پارٹنر کے طور پہ دیکھا جائے، نہ کہ صرف یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہو جدھر بہت سی امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز ہوں اور گلے شکوے ہوں، اور بار بار ہمارے پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے اور اپس اینڈ ڈاؤنز کی وجہ سے یہ بار بار ایک اسٹینڈ سٹل پہ آ جائے. بہت اہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے یہ. ہمارا سنگل لارجسٹ کنٹری ایکسپورٹ ہب جو ہے یا ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ ہے. فورن انویسٹمنٹ کی لارجسٹ سورس بھی ہے. ہمیں کس طرح بڑا کرنا ہے اس تقریباً گیو اور ٹیک 9 ارب کے حجم کو، وچ از پینٹس. کس طرح اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہماری اہمیت جو ہے اس کو ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ اجاگر کر سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو مڈل انکم کنٹری کے طور پہ ہی پیش کرنا چاہتے ہیں یا ایک باسکٹ کیس کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے اپنی ایکسپورٹ بیس کو، ہمیں اپنی پالیسیز کو ایک بار پھر ریوزٹ کرنا ہے کہ کہاں ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے جدھر ہم دنیا میں کمپیٹیٹو نہیں رہے. امریکہ کی طرف سے بھی کچھ آف کورس ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ فیسلٹیز جو ہیں ایکسٹینڈ کی جائیں. ہمیں بزنس مین جو ہیں ان کو کس طرح ان کی توجہ ہم حاصل کریں کہ وہ ادھر آئیں. ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہم کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں. آل دس اینڈ مور آج ایک خصوصی پروگرام کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیو فار کمرشل اینڈ بزنس افیئرز دلاور سید صاحب، جو ایک اسپیشل وزٹ کے اوپر پاکستان میں موجود ہیں. Mr. Dilawar, thank you very much indeed for joining us. It's a pleasure having you here. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And even though aap American Pakistani hain, you don't need a welcome here. This is your home. But ye trip kaisi rahi hai abhi tak? And what was your sole target and purpose of this trip? Absolutely. So first of all, thank you for having me, Meher. It's great to be here. You're right. I feel very much at home. اس ٹرپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ری سینٹر کریں بزنس کی طرف، کمرشل کی طرف، معیشی ٹاپکس کی طرف. ایز یو مینشنڈ آئی رن کمرشل ڈپلومیسی فار دا یو ایس. میرا کام کا مقصد یہ ہے کہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ تھرائیو کریں، امریکن انویسٹمنٹ تھرائیو کرے. اور پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کا سب سے زیادہ فوکس بزنس کی طرف ہونا چاہیے. یہاں پہ 222 ملین لوگ دنیا رہتے ہیں، 22 کروڑ عوام ہے. دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے. جب اس ملک کا آپ اسکیل دیکھیں اینڈ دا فیکٹ کہ ہماری ٹوٹل ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان 9 بلین سے زیادہ نہیں ہوتی، دیٹ از اے ڈراپ ان دا بکٹ. سو پورا فوکس رہا ہے اس پورے ہفتے میں نے پاکستان میں ٹائم گزارا ہے اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، ناؤ شہر قائد کراچی to meet with the business community. I think I've met with 80 to 100 companies, entrepreneurs, innovators, government officials at all levels, other stakeholders
to learn what's happening, कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं एक्सपोर्ट्स की जो हमें मज़ीद करनी चाहिए, to also look for opportunities जहाँ पे US investment ज़्यादा आ सकती है, to make sure that we build on this relationship that we have. I mean that is the need of the hour, Mr. Syed. मगर if you allow me, अगर हम अपनी bilateral relation or health of the relationship के ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लें, and then moving forwards one needs to understand कि हम किस तरह अपने आप को एक economic lens के through we wish to be seen through that, because unfortunately पहले हम लोगों ने अफगानिस्तान से पहले भी देखा है कि security lens थी, now nuclear lens भी कहा जा रहा है. I was reading some recent papers and your entire mission seems to be कि strictly economic lens से भी देखा जाए. What is the health of the relationship right now, you would say, अमेरिका और पाकिस्तान की? The health of any relationship, किसी भी relationship की सेहत है, it's what you make. ये हम सबको मालूम है, चाहे वो relationships किसी भी नौयत की हों. तो we have to make this relationship about all things business and economy and how it affects आम आदमी इस मुल्क में. मेरा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान के साथ, मेरा वास्ता पड़ता है हर लोगों के साथ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, और हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, मईशी हालात हैं, जो अफरात-ए-ज़र है, even by historical standards has gone to a very high level. Pakistan has not punched at its weight when it comes to economy. मैं आता हूँ हर कुछ सालों बाद और मुझे प्रोग्रेस वो नज़र नहीं आती जो मुझे बाकी दुनिया में मुल्कों में नज़र आती है. मेरे इस पोर्टफोलियो में पूरी दुनिया के मुल्कों से मेरा वास्ता पड़ता है. पाकिस्तान नीड्स टू बी गोइंग faster, much faster than it is. So that's the only lens that I know, और यही मेरा एक वाहिद फोकस है. बाकी किसी भी रिलेशनशिप में और भी टॉपिक्स होते हैं, आई थिंक, बट इस वक्त जो एक हमारे पास ये मौका है और ये मोमेंट है, गिवन स्पेशली कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस नज़र आ रहा है सामने, अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर सकता है और हम यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को. सो वी बीन अनफॉर्चुनेटली एक डिप्लोमेटिक फ्रीजर में पिछले दौरे हुकूमत से भी, एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि एटलीस्ट ये हुकूमत आके हमारे ताल्लुकात को रीसेट करने की कोशिश कर रही है, री एंगेजमेंट की अब कोशिश कर रही है, एंड इट सीम्स के सूरत हाल में कोई थॉइंग सो टू से नज़र आ रही है. Right now for you, is it still an uphill task? या increased आवाज़ें हैं both Democrats में भी, Republicans में भी, कि even post Afghanistan we need to also realign ourselves and start looking at, because मैं frankly speaking and I was writing some details, Daniel Marke के papers पढ़ी थी, and अभी भी हमें एक न्यूक्लियर स्टेट के तनाजुर से देखा जा रहा है. 3 ममालिक का सर्दर्न एशिया के अंदर इन पेपर्स के अंदर जिक्र हुआ, उसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इन 3 का जिक्र हुआ. एंड इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर. अभी आपके लिए हालात साजगार हैं कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करें एंड यू पुश द बटन्स दैट नीड टू बी पुश्ड? आर पीपल वांटिंग टू लिसन ओवर देयर? मेहर, मैं अक्सर सोचता हूँ और देखता हूँ कि पाकिस्तानी जो हैं मेरे अपने बहन भाई, जिन सोर्सेज को देख के अपने व्यूज़ इन्फॉर्म करते हैं और पर्सपेक्टिव्स, वो बहुत लिमिटेड हैं. मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अपना पर्सपेक्टिव कहाँ से फॉर्म किया है. जब मैंने ये दौरा शुरू किया है, जो एक तारीखी दौरा है बाय द वे, कभी आज तक एक सीनियर ऑफिशियल ने एक हफ्ता पूरे पाकिस्तान में नहीं गुजारा बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए. मेरा पहला कदम यह था कि मैंने उन कंपनी से गुफ्तगू की जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं. 80 से ज़्यादा कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, मैनी ऑफ द ब्रांड्स हमारे बहुत से सामने इस्तेमाल. They're already here. I wanted to listen and hear from them what's working. आपके क्या चीज़ें अच्छी जा रही हैं? What are the feedback that must take the government of Pakistan? और literally dozens of them showed up with lots of feedback, lot of interest. So to give you an example, that's what I pick on. मैं papers और certain चीज़ों को नहीं देखता. I think it's very important that Pakistanis, and I would submit to आपके सामीन कि हम ज़रा अपनी सोच को खुला करें. I think we are sometimes overly focused on the security context, even in this country. Again, before Pakistan has another relationship, the people must progress here. रोजगार यहाँ पे deliver होनी चाहिए. एनर्जी का क्राइसिस, बहरान जो है, जो साल दर साल चल रहा है, वो सॉल्व होना चाहिए, राइट? टेक्सटाइल्स की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. इन ऑल दो स्फीयर्स, मेहर, American companies, American entrepreneurs, Pakistani American diaspora, just technology entrepreneurs, and I was one before I joined the government, have a role to play. That's entirely where I'm focused on, and I see there are many people. So yes, space है, to answer your question, absolutely space है, but हमको space बनानी होगी
not only from our side but also from the Pakistani side. हमारा लोकल नैरेटिव जिसका आपने जिक्र किया और आपने कहा कि एक महदूद इनपुट होती है पाकिस्तानियों के लिए, आप जानते हैं कि आजकल सियासी माहौल इधर क्या है, और एक बहुत बड़ी जमात अपोजिशन की जो अभी बरसर इक़्तिदार भी रही, वो एंटी यूएस सेंटिमेंट्स और साजिश का बयानिया एक वो कर रही है, वो आपके जो गोल्स हैं, अहदाफ है, उसमें रुकावट नहीं बनेगा? मेरा फोकस और हमारा फोकस है कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. And there are enough people here who are ready to partner. मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे हफ्ते में तकरीबन 80 से 100 बिजनेसों से मेरी गुफ्तगू हो चुकी है. And these are serious industries of this country जो इस मुल्क की मईशत की बैकबोन है. I've also talked to the future of this country, entrepreneurs, women entrepreneurs. They're all ready to do business. In fact, they can't get enough business with the United States, right? So again, that's where I'm focused on. Okay. And that's how we can move forward. So, okay, that being taken care of, आप कह रहे हैं कि the sentiments or will बहुत है करने की. So we need a targeted approach. हमारे यहाँ बहुत hurdles हैं, naturally. To begin with, और मैं अपने उनके ऊपर आऊंगी कि हमारी कहाँ restrictive policies हैं, हमें किस तरह लिबरलाइज करनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज को भी. बट बिफोर दैट मुझे बताइएगा कि व्हाट विल इट टेक कि अमेरिका पाकिस्तान को एज अ प्रोडक्शन डेस्टिनेशन देखे जिस तरह चाइना को और इंडिया को देख रहा है, फॉर इंस्टेंस? सो इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन महर, एंड आई एम ग्लैड कि हम इस मौजूद बात कर रहे हैं. देखें, बिजनेस एनवायरनमेंट होनी चाहिए मुल्क के अंदर जो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए. 2-3 चीज़ें जो हमें फीडबैक मिला है जो अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनमें से एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, राइट. जो आईपी है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, वो लोग दहाई लगाते हैं उनको डेवलप करने में. उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है बिफोर उनको पाकिस्तान में एक्सपैंड किया जाए. एक वो एरिया है. दूसरा टैक्सेशन का फॉर एग्जांपल एक एरिया है, राइट. मल्टीनेशनल्स इस मुल्क का जो टैक्स दिया जाता है उससे बहुत बड़ा हिस्सा है. मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन कंपनीज जो टैक्स दे रही हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्स बेस in a very disproportionate manner in Pakistan. उसका हमने कुछ फीडबैक दिया कि मेक श्योर उसको वो एक आसान किया जाए. सो इस किस्म की बातें जो हैं वो इन बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पे एक कंपनी बाहर से आके अपना ऑपरेशन शुरू कर सकती है, अपने प्रोडक्ट्स को और आईपी को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसकी बहुत ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल वन मोर एरिया, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो अगर पैसे बना रहे हैं तो पैसे लेके भी जाना चाहते हैं वापस. दैट्स व्हाट इन्वेस्टर्स डू. उसके ऊपर कुछ आई वुड से काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन द रीजन. तो इसलिए पाकिस्तान को हमें एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना होगा इन्वेस्टर्स के लिए, यूएस इन्वेस्टर्स के लिए. तो हमने बहुत फीडबैक दिया है. आई मेट विद द एक्टिंग गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद लास्ट नाइट. I have obviously talked to the federal minister, Miftah Ismail Sahab, on some suggestions जो companies private sector की तरफ से हैं to make Pakistan more attractive. Again, I'll go back to it. पूरा पिछले साल कुल इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका से आई है पाकिस्तान में वो $159 million है. Let me repeat, $159 million. I mean, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मार्केट, इतना यूथ बल्ज, इतना कंजम्पशन दैट वी ऑब्जर्व इधर आ रही है, आप देख रही है, राइट. एंड दैट्स ऑल वी हैव. इट नीड्स टू बी 10x, needs to be 20x, but we have to enable their environment. We need to create this connectivity. अब मेरे इस दौरे के बाद inshallah I'm very confident that they'll be back and forth. Delegations coming, we will facilitate them. We want to have other officials visit and make sure that the government to government contact जो है वो उस्तवार हो, ताकि Is there anybody जो आप हमारी साइड से मिले जो आपको लगा कि एटलीस्ट थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना प्रोक्योरमेंट मार्केट्स अमेरिका के लिए हम उस तनाजुर से, इज एनीबडी वर्किंग हियर? एंड आई वांट टू नो बिकॉज यू हैड दैट इनसाइट, आप लोगों से मिले हैं और आपने अभी लिस्ट किया कि हमारे कौन कौन से हर्डल्स हैं, मगर हमारा फोकस है इन चीजों के ऊपर दैट वी बी लुक्ड एट एज दैट, और जो हर्डल्स हैं इनको दूर किया जाए, या आर यू योरसेल्फ हाईलाइटिंग दीज थिंग्स एंड रीचिंग आउट फ्रैंकली? मेरी जो मुलाकातें हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट से, मुलाकात हुई है मेरी सिंध में, कराची में जिस रात को. आई मेट विद द एंटायर सिंध कैबिनेट, पूरी सिंधी काबीना थी. मुराद अली शाह साहब भी थे एंड बिलावल भुट्टो भी थे, फॉरेन मिनिस्टर. एंड आई फाउंड इन ऑल दिस कॉन्वर्सेशंस आई वुड से एनर्जी, नॉट इवन एनर्जी, a sense of urgency.
and many of these conversations. Mr. Sayyed, but I mean as a production hub हमें देखा जाए, why are we lacking out? We have the resources. Right. हमारे पास human resource है, cheap labor है, हमारी ज़रूरत है सबसे बड़ी. Right, but पहली बात होती है कि आप इस कि आपकी will है, right? कि आप आते हैं, एक presentation देते हैं रात को, हमें दिखाई गई एक literally, and I didn't even ask for it, a presentation of all the opportunities जहाँ पे सिंध में investment हो सकती है, right? Now, obviously, I agree with you. At the end of the day, government of Pakistan and its people and its businesses and entrepreneurs. By the way, it's not just the government's job; it's also the business's job, right? बिल्कुल. To work and to focus on making sure कि अगर investment आई है हम उसको execute करें. तो मेरा जैसे एक message रहा है बहुत ज़्यादा business men and women के लिए भी, और मेरा ताल्लुक by the way business से है, I'm an entrepreneur, कि भाई you also have to innovate. You have to get outside your comfort zone. दुनिया बहुत आगे चली गई है. बिल्कुल ऐसा ही है. जो ममालिक पाकिस्तान के peers थे economically, वो इस वक्त इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान से आगे जा चुके हैं. हर एक इन्वेस्टमेंट डॉलर जो है, जो अवेलेबल है दुनिया में कहीं पे, उसके लिए 10 ममालिक सामने खड़े हैं उसको ट्रैक करने के लिए. सो इट्स नॉट जस्ट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट or a partner like us, it's also a responsibility of the businesses, women and men entrepreneurs, to make sure that they are innovating, they are providing the environment where they can thrive when the investment comes. मगर इन चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स हमारे, क्योंकि आपने जिक्र किया, यू राइट, प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है, बट उनको इंसेंटिव्स भी चाहिए. वी नीड दैट काइंड ऑफ एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस. तो क्या जिस तरह अमेरिका जैसे फैसिलिटीज़ देता है दीगर ममालिक को अपने एग्जिम बैंक के थ्रू भी, क्या हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं? कैन यू टैप इनटू दैट कि हमारे लिए भी जो है कम्पिटिटिव, हम इधर 15-20% के ऊपर अपने रेट के ऊपर अगर बोरो करके हमारा एक आम बच्चा, आम आदमी, प्राइवेट सेक्टर कोई भी काम करना शुरू करे, वो तो फ्रॉम द गेट गो अनकम्पिटिटिव है. आई मीन ही कांट कम्पीट विद. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं दो बातें कहना चाहूँगा महर इसके ऊपर. मेरे इस दौरे में आई एक्चुअली हैड DFC विद मी, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की. दे वर पार्ट ऑफ दिस होल कॉन्वर्सेशन. वी आर रेडी टू लुक एट प्रोजेक्ट्स जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हम फाइनेंसिंग कर सकें. दूसरी बात आई वुड से कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, अच्छी मसनूआत बनाता है और मुल्क में उसकी मार्केट है, इन्वेस्टर्स विल कम. They will also find a way to export this. I'll give you an example of technology. पिछले साल Pakistani tech startups, all based in Lahore, Karachi and through the rest of the country, raised about $350 million of funding. इसमें गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन नहीं थी. I have to say with all due respect, हम बहुत कुछ हुकूमतों से एक्सपेक्ट करते हैं. इस मुल्क का टैलेंट, इस मुल्क के जो नौजवान हैं, अगर उनका फोकस इनोवेशन पे हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे हो, जो बहुत सी हैं इस मुल्क में, बहुत सी हैं कंज्यूमर्स की, इन्वेस्टर्स विल फाइंड अ वे, मार्केट्स विल ओपन अप. मैं ये तासुर रद्द करना चाहता हूं कि समहाउ कोई एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है. जिन ममालिक की लोग बातें करते हैं यहाँ पे और जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने इनोवेट किया है. Next door, India's IT and tech exports are $150 billion. Absolutely. वो किसी ड्यूटी माफ करने से नहीं हुई, वो इसलिए हुई हैं कि they have produced some of the best products in the world, and I've been part of the ecosystem in the region. But then there's also technology transfer from America, ना? अमेरिका की तरफ से आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनके अपनी इनिशिएटिव की वजह से? Not in the world of technology and IT. It's all available. हमारे लोगों के पास वही एक्सेस है उसी टेक्नोलॉजी का जो दुनिया में बाकी लोगों के पास है. पर ऑफ कोर्स कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहाँ पे नहीं है, लेकिन मेरा ये मैसेज है कि let's execute where we can execute. पहले 2-3 कदम लें, दुनिया में एंगेज करें, अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं जहाँ बढ़ा सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स एज वी हैव दिस एंगेजमेंट, तो उसमें कुछ अगर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और बाकी अगर डिस्कशंस हैं, तो वन कैन ऑलवेज हैव दैट. द रियलिटी इज़ कि कुछ बहुत से सालों से इस इकॉनमी के मौजू पे बात ही नहीं हुई पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू चेंज. ये पहला कदम है, इंशाल्लाह हमें बहुत आगे चलना है, एंड आई होप दैट everybody can support as we move forward. Focus है हमारा, like CPEC के अंदर one window operation है, a lot of things are streamlined.
काम हो रहा है, जो रेड टेपिज्म है, ऑब्स्टिकल्स हैं, आई मीन इट्स अपहिल टास्क, हम उसको सही करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बट आपने इधर फोकस पाया या आपकी इस ट्रिप के बाद what are you focusing on? Agri-based goods हैं, textiles हैं, sports हैं, surgical goods हैं, what are the sectors you want to tap in on? या आपको लगता है कि यार ये अब ये priority list है हमारी? So 2 और 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रॉमिस है और मेरा कोशिश रहा है कि ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जाए जिससे रिजल्ट्स जल्दी मिल सकें. एक तो नंबर 1 टेक्नोलॉजी. अगेन वो जो इन्वेस्टमेंट आई है वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, ज़्यादातर उनकी वो इन्वेस्टमेंट आई है. हमारे पास पाकिस्तानी अमेरिकन डियास्पोरा है. पाकिस्तानी अमेरिकन जो है तकरीबन 7-8 लाख मौजूद हैं अमेरिका के अंदर. वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. लॉट ऑफ दिस कंट्रीज़ जिनकी हम बातें करते हैं जिन्होंने असेंडेंसी की है टेक्नोलॉजी में, उनकी बैरून मुल्क कम्युनिटीज़ ने बहुत बड़ा हिस्सा दिया है. ठीक है, वो भी अमेरिकन हैं बाकी अमेरिकन की तरह. आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी अमेरिकन, राइट. सो मेकिंग श्योर दैट टेक्नोलॉजी कैन, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स कैन ग्रो फ्राम $2.5 बिलियन जैसे अभी है टू $15-20 बिलियन. It's achievable, Meher, in the coming years. To give you an example, that rivals what textile is today, right? So one can leapfrog. ये बहुत जल्दी आप आगे जा सकते हैं. दूसरा एरिया जहाँ पे हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं है एनर्जी का एरिया, जो हमें पता है बहुत बड़ा बुहरान है. रिन्यूएबल एनर्जी में सिंध में मैं बैठा हुआ हूँ. 5 प्रोजेक्ट्स हैं विंड फार्म्स के जो अमेरिका ने सपोर्ट किए हुए हैं बड़े सालों से. ठीक है, we will continue to look at that. President Biden का बहुत बड़ा focus है towards renewable energy, and Pakistan is facing a severe crisis to help move away from fossil fuels, and we will continue to support projects, initiatives in the energy space, especially where we can leverage on solar resources, यहाँ पे बहुत abundant हैं, and wind resources. So those are 2 areas that I would bring up. और तीसरा शोबा वो चूँकि pandemic के बाद काफ़ी उस पे हमने सब ने शेयर किया है वो पेन इज अराउंड हेल्थ केयर, राइट, एंड डिजिटल हेल्थ और डिफेंस में तो अमेरिका हैज बीन वर्किंग विद अस पहले भी. अब आप जो नए सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू टैप इनटू, और आप अपने साथ काउंटर पार्ट से इधर यू विल बी इन टच विद देम, लेज करेंगे उनके साथ. एब्सोल्युटली. एंड तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि देयर इज जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने एक दिन पूरा सियालकोट में लगाया. बाय द वे मेरा ताल्लुक है सियालकोट से. आई अंडरस्टैंड द सिटी वेरी वेल. That city is the symbol of what entrepreneurship is. You know how you can हर तीसरा घर जो है वो entrepreneurship की तरफ जा रहा है, वो exports create कर रहा है और try to engage with the world. तो ऑलरेडी सियालकोट का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फॉरेन एक्सचेंज की तरफ. तो हम ये करेंगे कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा कनेक्टिविटी हो बिटवीन द एक्सपोर्टर्स ऑफ सियालकोट एंड द US मार्केट. अब जैसे सर्जिकल गुड्स की आप बात करिए, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करिए. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक बहुत उनकी अहमियत है हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट. वी जस्ट वेंट थ्रू अ पैंडेमिक. सप्लाई चेन्स बहुत डिस्टर्ब हुई हैं दुनिया भर में, राइट. तो जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कंपनीज के साथ सियालकोट में, आई वाज एनकरेजिंग देम टू लुक एट कोई ऐसे एरियाज हैं जहां पे वो सप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई हैं. तो उसके लिए आपको बातचीत शुरू करनी पड़ती है. उसके लिए आपको लोगों के कनेक्शंस बनाए जाते हैं कंट्रीज के दरमियान. सो माय ऑफिस विल हेल्प फैसिलिटेट टू मेक श्योर कि दीज कंपनीज कैन टैप इनटू द मार्केट. और ऑब्वियसली काम तो उन्होंने खुद करना है, राइट. दे हैव टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर, बट वी कैन सर्टनली हेल्प फैसिलिटेट. Absolutely. We're in conversation with Mr. Dilawar Syed, US Special Representative for Commercial and Business Affairs. एक वक्फा लेंगे. We're going to be right back. Stay with us.